ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆਉਣਾ ਹਿਸਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਰੱਖੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 20-25 ਮਿੰਟ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖਾਬ ਚੌਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਐਸਪੀਐਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਗਵਾਨ ਚੌਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 8-9 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 3-4 ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਖਮ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ, ਪੈਸੇ ਲਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਸਰ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਸੱਟਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, 1-2 ਦਿਨ ਐਡਮਿਟ ਕਰੋ, ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਚਾर्ज पेपर ਤੇ साइन कर दो, ਇਹਨਾਂ ਨੇ नहीं कीते, ठीक है। मैंने यही सुना है, मैं वहाँ पर्दे के पीछे खड़ी थी, उनको नहीं पता मैं खड़ी थी, लेकिन उसने बात की है डॉक्टर से कि एक मेरे साइन करवा ले, एक बाहर वाली पार्टी के साइन करवा ले, साइन करवा के इनको घर भेज दे और मामला यहीं रफा दफा करवा दे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तो मीनाक्षी है जी। तो इसके बाद इनका इलाज कहाँ चला, कहाँ लेके गया आप? वही मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। उन्होंने क्या किया कि उसके बाद इन्होंने साइन नहीं किया और एक पेपर लेके आए, उनपे ये लिखा हुआ था जो हमने इनके ऊपर ट्रीटमेंट किया है ना जी, ऊपर जो अपने स्टिचिंग लगाए हैं, ये उसका पेपर है कि आपकी रजामंदी से हमने ये स्टिचिंग लगाई, इस पे पेपर पे साइन कर दो। तो ये कहते कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। तो इन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया, जो इनका बेटा है दूसरा, उनसे पढ़वाया, पढ़वा के उस पर लिखा हुआ था, बेटा ये क्या लिखा हुआ? कहते ये डिस्चार्ज के पेपर है, लेकिन बोला क्या गया था कि इसकी जो स्टिचिंग वगैरह की गई उस चीज के पेपर है। अब इससे ये चीज जाहिर होता है कि इन्होंने दबाव था पूरा कि इनको डिस्चार्ज किया जाए। मेरे को समझ नहीं आई क्यों किया गया। फिर वहां से इन्होंने धक्के से इन्होंने वो डिस्चार्ज पेपर साइन नहीं किए, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए जब इनको लगा कि इस हॉस्पिटल में मेरे बच्चे की जिंदगी खतरे में है, वो इनका रवैया देख के उसके बाद ये अपने हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर साहब अपने जो हड्डियों के डॉक्टर है, क्या नाम उनका? नीरज चौधरी जी के पास लेके गए हैं। नीरज चौधरी के पास जब बच्चे को लेके गए हैं तो वहां उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहां गए हॉस्पिटल में, तो वहां पे हॉस्पिटल जाने पे बच्चे को खून की उल्टी आ गई नीरज चौधरी जी के पास। और डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आप इनको किसी भी दिमागी जो हॉस्पिटल है चोट लगी, दिमाग पे सिर पे लगी हुई है, न्यूरो सर्जन के पास ले जाओ। तो इन्होंने फिर ललित जी अपने जो है अपने स्पाइन, दिल्ली स्पाइन केयर वाले हॉस्पिटल में डॉक्टर है जो हमारी हर सेवा में हमारे साथ देते हैं, हर ऑपरेशन में भी इलाज में हेल्प मिलती है उनकी, उनके पास ले गए। उन्होंने जाते ही उनको स्टिचिंग देखे, वो कहते स्टिचिंग किसने लगाए हैं? वो कहते अपने डॉक्टर साहब ने लगाए हैं, पर लेकिन आप जितनी भी जल्दी हो ना इनका ऑपरेट कर लो, आपके पास आए, हमारे बच्चे की जिंदगी बचा लो। अब ये इनके जो पिताजी है, ये इतने सालों से सेवा कर रहे हैं मंदिर के अंदर, 2-5, 10, 20 रुपए, अगर कोई इनकी सैलरी नहीं आती, गरीब परिवार की है, 2 बच्चे इन्होंने पढ़ा के। अब मुद्दा मेन ये है कि इनका इलाज कहाँ चला, कहाँ हुआ? दिल्ली अपने जो स्पाइन केयर वाला है जो उनके पास चला। अब इनकी हालत कैसी है? अब इनकी कल रात को ही छुट्टी दी है डॉक्टर साहब ने। इनका ट्रीटमेंट अभी सिर के जो जख्म है बिल्कुल वो स्टिचिंग लगा दी है, वो आपने देखे होंगे पहले वाले जो स्टिचिंग देखे हैं और अब वाले देखो जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने लगाए। अब आप क्या डिमांड क्या करते हैं? डिमांड ये करते हैं जी, देखो आज इनके बच्चे के साथ हुआ है सर, ठीक है। इतने हॉस्पिटल सिरसा वाले में है, हमारी पूरा कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं हर चीज के अंदर, उनकी पोस्टें भी डालते हैं इस टीम ने और उनके स्टाफ ने हमारी पूरी हेल्प की है। लेकिन आज जो एसपीएस हॉस्पिटल है हमारे गुरुओं के नाम पे है, सदगुरु प्रताप सिंह जी के नाम पे है, उनके हॉस्पिटल में ऐसे 9 सिखिए डॉक्टर जिनको ये नहीं पता जख्मों के ऊपर टांके कैसे लगाए जाते हैं, जख्म खुले छोड़ रखे हैं, पट्टी ढककर उसी दिन डिस्चार्ज करिए, उसका रीजन क्या है? वो रीजन हमको जानना है। और वो उन्होंने जो गलती की है, अगर वो गलती की माफिया मांगते हैं और आगे से भविष्य में कान पकड़ के माफी मांगे कि ये चीज हमारी से नहीं होगी और ये चीज की, तब हम छोड़ेंगे। 48 घंटे का हम अल्टीमेटम देते हैं उनको, वो इस चीज पे विचार करें कि जो उन्होंने गलती की है उस चीज का सुधार करे वो।
नहीं तो 48 घंटे बाद जो हमारी समाज सेवी संस्थाएं मीटिंग करेंगी उसके हिसाब से चले। नाम जयवीर शर्मा है और एसपीएस जो अस्पताल है वहाँ जो डॉक्टर अनिल है उसने जो आपने देख ही लिया जो ये टांके जो दबाव बनाया ये बिल्कुल गलत है। मेरे बेटे पे मतलब जान पे बनाई थी। मैं चाहता हूँ कि वो दबाव वो किस चीज़ का था, कोई लिंक थे, कोई वीआईपी लिंक थे या कोई पैसा दिया गया है। पैसा मैंने भी दिया है इलाज के लिए, लेकिन दबाव क्यों बनाया कि बेटे को ले जाओ। वहाँ कोई दिवाली होली कुछ नहीं था, कोई आधी रात नहीं थी, सिर्फ दोपहर के 3 बजे का टाइम था। दोपहर के 3 बजे सिरसा के बीचों बीच एसपीएस का नाम है, शहर के सिरसा बहुत बड़ा शहर है, तो ये लापरवाही मैं चाहता हूँ कि सख्त कार्रवाई हो। हाँ बिल्कुल सही बात है, एक वर्जन लेके नहीं चला सकते एक साइड पे नहीं। मेरे को असल बात बताऊं, आपा तो चल अपने लोग ही बैठे हैं। मेरे पास कल आया था शाम को 5:30, डॉक्यूमेंट सारे मेरे हॉस्पिटल में है। कहता आ गया घर पे, कहता जी नहीं बाइट दो। मैं कहा जी बाइट मैं ऐसे नहीं दे सकता तेरे को, तू बाइट तो मैं मेरे प्रूफ के साथ दूंगा तेरे को, मेरी मैनेजमेंट साथ बैठेगी, डॉक्टर साथ बैठेगा। जी नमस्कार, मैं योगेश शर्मा एसपीएस हॉस्पिटल, मैं यहाँ पे असिस्टेंट यूनिट हेड के तौर पर कार्यरत हूँ। अभी एक हमारे यहाँ पे पेशेंट एडमिट हुआ था केशव शर्मा, उसके परिजनों ने हमारे ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं, जो आरोप बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं। मैं उनका स्पष्टीकरण आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। उन्होंने हम पर 3 आरोप लगाए हैं। पहला आरोप ये था कि भाई हमने उनके बेटे को एडमिट नहीं किया। दूसरा आरोप उनका था टांकों को लेकर के, सिर के अंदर जो स्टिचेस लगे थे वो सही नहीं थे। तीसरा आरोप उनका ये था कि भी पैसों का इनके ऊपर हमारे ऊपर दबाव था, जिसके कारण कि हमने उनको एडमिट नहीं किया। मैं इन तीनों का आपको स्पष्टीकरण देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जी टांकों की। ये जो केस था बच्चे का, ये रोड साइड एक्सीडेंट केस था। इस तरह के किसी जो भी रोड साइड एक्सीडेंट होता है उसका जो भी जख्म होता है वो हमेशा खुला रखा जाता है, ताकि उसकी डस्ट और उसकी पस वहाँ से बाहर निकल सके। इसीलिए उसके टांके लूज रखे गए थे। ये सारे बुद्धिजीवी हैं, आप कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, कोई मेडिकली प्रूव्ड है ये चीज़। इसीलिए उसके पहली बार टांके खुले थे। दूसरी बात जो इन्होंने हम पे एलिगेशन लगाई कि इनके बच्चे को हमने एडमिट नहीं किया, हमने इनकी सिटी करवाई। यहाँ पे बच्चे की सिटी रिपोर्ट इसकी बिल्कुल नॉर्मल थी, वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। सिटी रिपोर्ट के अंदर इसके सिर में कोई चोट नहीं थी, और जिसके करके हमने इन्हें बोला कि भी आपका बच्चा नॉर्मल है, आप चले जाओ। शोल्डर के अंदर इसके फ्रैक्चर था। डॉक्टर नीरज चौधरी जी जो हमारे कंसल्टेंट हैं, हमने बच्चे को उनके पास रेफ़र किया कि भी आप वहाँ से करवा लो। फिर भी इन्होंने बोला भी एडमिशन करो। एडमिशन हमारा मेन बेसिक कारण एक ये भी था कि जो हमारे न्यूरो सर्जन डॉक्टर हैं वो पिछले शनिवार से लेके आने वाले सोमवार तक छुट्टी पर है। अगर हम बच्चे को एडमिट करते हैं, रात को कोई ऊंच नीच होती है बाई चांस, तो उस बच्चे का इलाज कैसे होता, इसीलिए हमने बच्चे को रेफ़र किया। तीसरी बात, इन्होंने हम पे एलिगेशन लगाया कि भी इनके ऊपर पैसे का दबाव था। अगर हमारी मैनेजमेंट के ऊपर या पर्सनली मेरा नाम लिया गया इसके अंदर, अगर मेरे पे पैसे का दबाव होता तो मैं यहाँ पे आके पुलिस इन्फॉर्म नहीं करता, पुलिस को ना बुलाता और दूसरी पार्टी के विरुद्ध एमएलआर ना काटता। ये जो भी कार्रवाई हुई है ये हॉस्पिटल की तरफ से हुई है, ना कि उसके परिजनों की तरफ से। इसीलिए हम इसका मेन रीज़न यही है कि हम पे किसी तरीके का कोई दबाव नहीं था। परिजनों की तरफ से हम पर दबाव था कि भी आप पैसे ले लो लेकिन बच्चे को एडमिट करो। एडमिट हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है रात को। जो टांकों की बात है वो मैंने आपको बता दिया, क्लैरिफाई कर दिया है, वो मेडिकली प्रूव्ड है कि भी इस तरह का रोड साइड एक्सीडेंट है, कंटेमिनेटेड जो जख्म है उसको आपको लूज रखना होता है। और आपको टाइम दिया गया है कि माफी मांगे, नहीं आने वाले समय में कोई बड़ा कदम उठाए। किस चीज के लिए माफी मांगूंगा? इन्हीं चीजों के लिए, तो बच्चे को एडमिट नहीं किया, उसका ट्रीटमेंट सही मैं है, डॉक्टर का आपको कहना है। माफी की तो इसमें बात ही नहीं आती। एडमिट नहीं किया, डॉक्टर नहीं था, टांके लूज लगाए, मेडिकली टांके लूज लगते हैं। जहाँ तक आप मेरे से ये बात कर रहे हो कि भी आप पे पैसे का दबाव था, तो फिर मैं पुलिस को ना बुलाता। इसमें माफी की तो बात ही नहीं आती, इसमें बात आती है क्लैरिफिकेशन की। मैं इनका बच्चा 3 बजे हॉस्पिटल में आके एडमिट हुआ है और मैं 6:15 बजे हॉस्पिटल आया हूँ। 6:30 पे ये यहाँ से चले गए हैं, तो इस दौरान मैं तो हॉस्पिटल में था ही नहीं। मेरी बदतमीजी करने का इनसे मतलब ही नहीं बनता। फिर भी अगर इनको लगता है, आप लोगों को लगता है, तो हमारे पास प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग्स है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि भी मेरी इनके साथ कोई बात भी हुई है या नहीं हुई।
जिस तरह से 48 घंटे का उनके द्वारा समय दिया गया है, इसके दौरान अगर उनके द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है, कोई अगला स्टेप लिया जाता है, तो आपकी तरफ से अगर वो कोई इसके बाद कोई भी स्टेप लेते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे हमने क्या करना है। हम उस स्टेप को क्लैरिफाई करेंगे, ना कि उनके अगेंस्ट खड़े होकर उनके साथ लड़ेंगे। अगर ये किसी तरीके से धरना लगाते हैं किसी चीज, पहली बात ये है कि जो समाज सेवी लोग इनके साथ आके खड़े हुए हैं, उन्होंने किसी ने भी हमसे आके बात नहीं की अभी तक। कोई भी बंदा हमारे पास पूछने के लिए नहीं आया कि भाई ये क्यों हुआ था। डायरेक्टली उन्होंने मीडिया पे डाल दिया। अगर ये धरना लगाते हैं तो हमें प्रशासन का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा कि भाई हमारी तरफ से ये क्लैरिफिकेशन है, फिर हमारे हॉस्पिटल के बाहर धरना क्यों। यानी आप चाहते हैं कि इनकी तरफ से कोई बंदा बातचीत के लिए आए, अगर कोई विवाद है तो। हाँ, अगर इनके मन में कोई विवाद है तो हमारे साथ आके बात करें। जो हमारी क्लैरिफिकेशन जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, यही क्लैरिफिकेशन मैं उनको दूंगा कि भी हमारे ये रीजन थे उनको एडमिट ना करने के, और उसके बाद वो लोग जो जैसा चाहते हो वैसा कर सकते हैं।